हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टेक विद किरण। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन ऑफ 3B which is based on process. Okay, now in this practical we execute a thread synchronization using counting semaphore which is based on thread execution or a thread synchronization. Okay, so this practical is based on sharing management using semaphore and mutex. Before going through code explanation and execution, we first understand what is thread, what is meant by synchronization. Then we discuss what is semaphore, mutex, and why it is used during thread synchronization to avoid race condition or avoiding a confusion of a data. Let's discuss these terminologies one by one. Then we go through code implementation and its execution. Okay. During this practical, we know about what is thread, how thread synchronization implemented, then what is mutex, semaphore, then how it will be work for us and how it will help to manage a thread. Okay, then what is semaphore, why it is useful during thread synchronization, then what are the resources and what producer and consumer is. Now, what is mean by thread? Thread is the smallest unit of execution inside your program, or you can say inside your process. Now, let's consider a real-time program or an example. You have a web browser which is a one process. Okay. Now, one thread handle a user interface, then another one or a second thread handle your download file. Okay. Then next thread is handling your playing a video or any other task. Okay, so these all threads are belong to the same browser process. करेक्ट है, ये सिंगल ही प्रोसेस होगा. ओके, लेकिन डिफरेंट थ्रेड वहां पे वर्क कर रहे हैं. करेक्ट है. थ्रेड इज नथिंग बट सिंपली योर लाइट वेट सब पार्ट ऑफ अ प्रोसेस. ना, जब आपके मल्टीपल थ्रेड्स वर्क कर रहे होंगे और ये क्या करेंगे, सेम ही आपके जो रिसोर्सेस है वो शेयर करेंगे. अब सेम रिसोर्सेज शेयरिंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अगर एक सिंगल रिसोर्स आपके ये तीनों थ्रेड में चाहिए होगा तो सिंक्रोनाइजिंगली दे विल वर्क, एक के बाद एक वो उस रिसोर्स को यूज करेंगे या फिर यूटिलाइज करेंगे. ना, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन ना हो बिटवीन थ्रेड. ओके, आप क्या यूज करेंगे इसके लिए, सेमाफोर एंड mutex. Now, what is mean by mutex and what is mean by semaphore? Let's discuss first mutex. Okay, this is a mutex lock in operating system diagram. Okay, now what is mutex? Mutex is term based on mutual exclusion or a mutual understanding. Okay, at the same time एक ही कोई thread आपका जो है वो आपका रिसोर्स यूटिलाइज करेगा. करेक्ट है. और जब आपका कोई एक थ्रेड आपका रिसोर्स यूटिलाइज करेगा वो टाइम पे आपका म्यूटेक्स जो है वो सिस्टम को लॉक कर देगा. ओके, सिस्टम लॉक करेगा मतलब जो बफर है आपका जिसमें आपके रिसोर्सेस है वो उसे लॉक कर देगा फॉर अ थ्रेड वन. जैसे ही थ्रेड वन से आपके रिसोर्सेस रिलीज हो जाएंगे वो क्या करेगा, ये म्यूटेक्स को अनलॉक करेगा. देन थ्रेड टू, then thread 2 is ready or thread 2 can use these resources in a buffer. So this is how mutex work. So simply what you can say, when two or more thread try to change the same data or try to access the same buffer, that time result can get maybe wrong. Okay, here mutex help. Mutex ensure you single thread ही आपका डेटा शेयर करेगा या फिर आपका बफर जो है वो यहाँ पे यूज कर पाएगा. इट इज यूज टू लॉक रिसोर्सेस बफर. ओके, ड्यूरिंग आवर प्रैक्टिकल हम म्यूटेक्स यूज करेंगे फॉर अ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम. व्हाट हियर नाउ व्हाट हैपनिंग ओवर हियर, आपका सेम ही शेयर रिसोर्सेस है. करेक्ट है, वही थ्रेड वन से भी यूज कर रहे हैं तो वही थ्रेड टू भी यूज करें. थ्रेड वन और थ्रेड टू जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं. ओके, आपका ब्राउजर का भी अगर थ्रेड हो गए, डिफरेंट थ्रेड हो गए विद इन द सेम प्रोसेस, ये थ्रेड अलग काम कर रहा है, ये थ्रेड अलग काम कर रहा है, ये इंडिपेंडेंटली वर्क तो कर रहे हैं लेकिन आपके जो रिसोर्सेस है वो सेम ही है. एंड फॉर दैट म्यूटेक्स हेल्प्स यू. ओके, लॉक करेगा फॉर अ थ्रेड वन, आफ्टर दैट थ्रेड टू इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा. दिस इज द सिचुएशन हैंडल बाय योर mutex by using locking and unlocking conditions. For example, this thread is a producer and this thread is a consumer,
एट ए टाइम या तो प्रोड्यूसर या तो कंज्यूमर, दोनों में से एक ही आपका रिसोर्स जो है वो यूज कर पाएगा। ओके, ना व्हाई म्यूटेक्स इम्पोर्टेंट, अगर कंसिडर करें ये एक आपकी वर्ड फाइल है या फिर एक्सेल है। ओके, थ्रेड 1 और थ्रेड 2 एट ए टाइम अगर इसे एक्सेस करेंगे, ओके, तो यहाँ पे डेटा लॉस या फिर डेटा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ओके, तो आपका जो डेटा है वो करेक्ट फॉर्म में नहीं रह पाएगा। इसीलिए इसीलिए हम म्यूटेक्स का कंसेप्ट यूज करते हैं, ताकि एक बार थ्रेड 1 इसको यूटिलाइज कर ले, इसको यूज कर ले, ये इसका जो राइटिंग का वर्क है ये कंप्लीट कर ले, उसके बाद में ही जब थ्रेड 1 का वर्क खत्म हो जाएगा थ्रेड 2 इसे एक्सेस करेगा, और देन जो थ्रेड 2 को वर्क करना है वो यहाँ पे करेगा। ओके, सो बेसिकली दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग म्यूटेक्स। नाउ लेट्स डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सेमाफोर। तो सेमाफोर क्या होगा? सेमाफोर इज नथिंग बट योर काउंटर, और इन दिस प्रोग्राम स्टेटमेंट यू कैन यूज एज दिस टर्म एज अ योर सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 3 रिसोर्सेस है विच इज नथिंग बट योर प्रिंटर। ओके, सो दिस आर 3 रिसोर्सेस। ओके, नाउ यहाँ पे आपकी जो प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल S1 प्रोसेस, S2 प्रोसेस, S3, S4, S5 प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पांचों प्रोसेस मिलके आपकी जो 3 रिसोर्सेस है उसको एक्सेस करने के लिए ट्राई करेंगे। ना यहाँ पे क्या होगा, सेमाफोर की वैल्यू किस बेसिस पे काउंट होगी? जितने रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे आपका सेमाफोर का काउंट आएगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो ये टर्म में आपके सेमाफोर की वैल्यू रहेगी 3। जैसे ही आपकी कोई भी एक रिसोर्स किसी से यूटिलाइज होगा, फॉर एग्जाम्पल ये आपका नेटवर्क है या फिर आपकी प्रोसेसेस है, करेक्ट है, जैसे ही मेरे किसी सिस्टम के थ्रू या फिर किसी प्रोसेस के थ्रू आपका प्रिंटर कंज्यूम हो गया है ना, जैसे ही मेरे सिस्टम के थ्रू या फिर आपकी जो प्रोसेस है उसके थ्रू आप जो प्रिंटर है, ओके, तो ये कंज्यूम किया गया है या फिर यूटिलाइज हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, इन इस तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑलरेडी यूटिलाइज है। तो अब आपके पास में ये 2 ही प्रिंटर बचे हैं जो आप बाकी प्रोसेस को यूटिलाइज करा सकते हो, ओके, या फिर एक्सेस दे सकते हो। तो इन दैट केस क्या हो रहा है, आपकी सीमाफोर की जो 3 की वैल्यू थी वो डिक्रीमेंट होगी बाय 1। ओके, देन अगर मेरे S1 ने ये पहला प्रिंटर यूटिलाइज किया था, मेरे सेमाफोर की वैल्यू अब क्या हो गई थी 2। ओके, देन जैसे ही S1 प्रोसेस का काम कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही ये रिलीज कर देगा इस प्रिंटर को या फिर इस शेयर्ड रिसोर्सेस को, तो सेमाफोर की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर से 3। सिमिलरली अगर बाय प्रोसेस 2 आपके 2 प्रिंटर यूटिलाइज हो गए, करेक्ट है, तो वो केस में आपके सेमाफोर की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी बाय 2। ओके, देन आपके पास सेमाफोर की वैल्यू क्या रहेगी उस केस में 1। इन एनी केस अगर आपके तीनों के तीनों जो प्रिंटर है वो आपके प्रोसेस में यूटिलाइज हो गए या फिर अलॉट हो गए, तो वो केस में आपके सेमाफोर की वैल्यू क्या होगी 0। अगर मेरे सेमाफोर की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये प्रोसेस जब भी इसे एक्सेस करने को ट्राई करेगी तो पहले ही हम क्या चेक करेंगे, सेमाफोर की वैल्यू क्या है। अगर 0 है इसका मतलब अभी भी कोई रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है। जब तक इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं रहती ये आप यूटिलाइज नहीं कर सकते या फिर एक्सेस नहीं कर सकते हो, करेक्ट है। सो बेसिकली यही आपके सेमाफोर का काम होगा। ओके, देर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमाफोर। फर्स्ट वन इज बाइनरी सेमाफोर एंड सेकेंड वन इज योर काउंटिंग सेमाफोर। ओके, बाइनरी सेमाफोर जो है आपका वो यूज होगा जब आपका सिंगल रिसोर्स अवेलेबल है। ओके, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल में हमें इम्प्लीमेंट करना है काउंटिंग सेमाफोर। काउंटिंग सेमाफोर हम इम्प्लीमेंट करते हैं जब आपके पास में मल्टीपल रिसोर्सेस है फॉर योर यूटिलाइजेशन और टू प्रोवाइड रिसोर्सेस टू द योर प्रोसेसेस। ओके, फॉर इम्प्लीमेंटिंग सेमाफोर हमें 2 ऑपरेशन नीडेड होते हैं विच इज सेमाफोर वेट एंड सेमाफोर पोस्ट। ओके, I hope you understand the concept of thread, semaphore and mutex. Now, what is a thread synchronization then? Thread synchronization means multiple thread एक ही आपकी जो resources है या फिर बफर है उसको access करेंगे और simultaneously या फिर concurrently वो work करे, एक साथ एक टाइम पे वो work कर रहे। Okay, this is the concept of your semaphore. Okay, so let's move forward with the implementation. Before implementation हमें क्या चेक करना होगा, कौन से बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो हम यूज करेंगे ना जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक बफर चाहिए होगा जिसमें हम जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने भी रिसोर्सेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो प्रोड्यूस
इस रिसोर्स को हमें कहीं पे स्टोर करना होगा, तो उसके लिए हमें चाहिए है बफर। तो उसकी साइज डिफाइन करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ बफर साइज। ओके, बफर क्या रहेगा देन? बफर आपका एक शेयर्ड एरे रहेगा जो यूज होगा टू स्टोर अ प्रोड्यूस आइटम बाय योर प्रोड्यूसर। ओके, देन यहाँ पे मैंने इन दिया है, तो ये इन किस लिए यूज होगा? आपका इंडेक्स की जो पोजीशन है वेयर प्रोड्यूसर विल इंसर्ट योर नेक्स्ट आइटम। ओके, मल्टीपल आइटम्स रहेंगे आपके पास में या फिर मल्टीपल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल इन प्रीवियस एग्जांपल वहाँ पे 3 आइटम्स थे या फिर 3 रिसोर्सेज थे, करेक्ट है? तो उन्हें प्लेस करने के लिए जो पोजीशन उनकी रहेंगी, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इन वेरिएबल। देन आउट क्या करेगा? इंडेक्स पोजीशन जहाँ पे आपका कंज्यूमर जो है विल रिमूव आइटम। ओके, तो आपका इन यूज होगा बाय योर प्रोड्यूसर। देन आउट किसके लिए यूज होगा? फिर आउट यूज हो रहा है आपका जो रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज करते वक्त आउट करने के लिए फ्रॉम योर बफर। ओके, तो कंज्यूमर के थ्रू आपका कॉल होगा या फिर कंज्यूमर जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तब आप ये आउट मैनिपुलेट करेंगे। ओके, देन एम्प्टी यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। म्यूटेक्स आपको लॉकिंग और अनलॉकिंग की जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करेगा। ओके, तो ये क्यों यूज करेंगे हम? ताकि आपकी कोई भी प्रोसेस या फिर आपके थ्रेड जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में ना जाए। ये है प्रोड्यूसर थ्रेड, ओके, और ये है कंज्यूमर थ्रेड। ओके, दिस ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट अ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर थ्रेड, करेक्ट है? देन आइटम क्या है? आइटम इज नथिंग बट योर टेम्पररी वेरिएबल जो आप यूज करेंगे प्रोड्यूस और प्रोड्यूस या फिर योर कंज्यूम आइटम को। ओके, ना उसके बाद क्या है? दीज आर सम फंक्शंस जो आपके यूज होने वाले हैं आपके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स डिस्कस द अल्गोरिदमिक फ्लो फॉर योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सबसे पहले हमें क्या करना है? इनिशियलाइज करना है जो भी वेरिएबल हमने डिस्कस किए हैं, फॉर एग्जांपल बफर, और उसकी साइज हम यहाँ पे पास करेंगे। देन इन कहाँ पे यूज होगा? एट द टाइम ऑफ प्रोड्यूसर। देन आउट कब कॉल होने वाला है? एट द टाइम ऑफ योर कंज्यूमर थ्रेड। देन सेमाफोर क्या करेगा? सबसे पहले इनिशिएट होगा एम्प्टी के साथ में। ओके, और फुल की वैल्यू जो है अभी आपकी जाएगी 0। उसके साथ में हमें एक म्यूटेक्स भी देना है अनलॉक और लॉक के लिए। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? हम क्रिएट करेंगे प्रोड्यूसर। ओके, जैसे ही प्रोड्यूसर कॉल होगा या फिर क्रिएट होगा वैसे ही आपके कंज्यूमर थ्रेड्स भी कॉल होंगे। ओके, जैसे ही मैंने रिसोर्सेज अलॉट कर दिए, रिसोर्सेज क्रिएट कर दिए, आपके कंज्यूमर भी वहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। इसके बाद में क्या होगा? जैसे ही मैंने क्रिएट किए ये थ्रेड, आपके ये जो दोनों प्रोसेस हैं वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो चुकी है। लेट्स अंडरस्टैंड अ प्रोग्राम कोड। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे फर्स्ट 5 लाइंस जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया है? मैंने जस्ट मेरी हेडर फाइल जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। अब हर एक हेडर फाइल का एक मोटिव है। फॉर एग्जांपल stdio.h आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रिंटफ स्टेटमेंट फॉर प्रिंटिंग योर आउटपुट। ओके, देन pthread आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? जो फंक्शन है थ्रेड के रिलेटेड। ओके, तो वो फंक्शन आपको प्रोवाइड होंगे pthread में। ओके, देन सेमाफोर जो भी आप वेट या फिर पोस्ट के जो फंक्शन यूज कर रहे हैं फॉर अ सेमाफोर, वो आपको वो प्रीडिफाइंड है आपके semaphore.h लाइब्रेरी में। देन स्लिप स्टेटमेंट आपको यूज करना है तो आप UNI STD जो है, ओके, तो ये लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हो। देन रैंडमली आपको जो आइटम जनरेट करने हैं, ओके, रैंडमली जो आपको प्रोड्यूस करने हैं उसके लिए ये जो फंक्शन है रैंडम या फिर एस रैंडम, तो इसके लिए जो लाइब्रेरी हमें चाहिए होगी वो है std lab। ओके, नेक्स्ट वन इज अ बफर। इट इज यूज फॉर अ एरे। ओके, ना यहाँ पे हमें स्पेसिफाई क्या कर रही हूँ? जो भी साइज है बफर की मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रही हूँ। ओके, देन यहाँ पे हमने क्या किया है? इंडेक्स बफर आपको क्या बता रहा है? द शेयर्ड सर्कुलर बफर। ओके, हम सर्कुलर बफर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इन, तो इन किसके लिए यूज होने वाला है? देन इंडेक्स वेयर प्रोड्यूसर राइट देयर नेक्स्ट। ओके, आउट कहाँ पे यूज होगा? बाय अ कंज्यूमर। तो ये क्या रीड करेगा? जो भी आपका नेक्स्ट कंज्यूम करने के लिए आपके पास अवेलेबल है वो वैल्यू इसमें रिटर्न आने वाली है। देन एस एम्प्टी या फिर सेमाफोर थ्रेड एम्प्टी, इट इज डिक्लेयर्ड फॉर अ काउंटिंग अ सेमाफोर। ओके, तो सेम टी का मतलब क्या है यहाँ पे? इट काउंट्स योर एम्प्टी स्लॉट। ओके, देन सेकेंड वेरिएबल वी क्रिएट अ फुल। व्हाट इट काउंट? इट काउंट अ filled slot। देन pthread mutex -t यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है? ये वेरिएबल है,
क्रिएटेड। ओके, तो ये क्या करेगा, म्यूटेक्स देगा फॉर अ क्रिटिकल सेक्शन। ओके, तो म्यूटेक्स का मीनिंग हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो ये क्या करेगा, आपको बाइनरी लॉक टू प्रोटेक्ट द क्रिटिकल सेक्शन। ओके, सो योर ओनली थ्रेड या फिर वो सिंगल थ्रेड ही उसे मॉडिफाई कर पाएगा या फिर आपके बफर को वो मॉडिफाई कर पाए। नाउ लेट्स डिस्कस मेन फंक्शन फर्स्ट। ओके, यूजिंग अ pthread -t मैंने क्या क्रिएट किया है, आपके प्रोड्यूसर के जो थ्रेड है उसके लिए और कंज्यूमर का जो थ्रेड है उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। आप ये कहाँ पे यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके कुछ जो रिसोर्सेस है वो आपको प्रोड्यूस करने हैं, तो प्रोड्यूस होंगे तो कितने नंबर ऑफ वेरिएबल या फिर कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेस आपके अवेलेबल है आपके पास में, उसके लिए आपको प्रोड्यूसर थ्रेड यूज करना पड़ेगा। देन कंज्यूमर थ्रेड क्या करेगा कि कौन से रिसोर्सेज आपकी यूटिलाइज होने वाले हैं, तो उसके लिए आपका ये थ्रेड वेरिएबल यूज होगा। नाउ लेट्स डिस्कस दिस पीस ऑफ कोड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं आपके सेमाफोर और म्यूटेक्स को। ओके, तो इनिशियली हम क्या करेंगे, हमारे स्लॉट्स जो भी है, अभी हमारे पास कुछ कोई भी प्रोड्यूसर नहीं है या फिर कोई भी कंज्यूमर नहीं है, करेक्ट है। तो वो केस में हमें क्या करना है, पूरे जो स्लॉट्स है वो हमें एम्प्टी से इनिशिएट करना है। ओके, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे एम्प्टी पास किया है। देन व्हाट मीन बाय जीरो, ओके, आप जो यूटिलाइजेशन कर रहे हो या फिर जो भी वर्किंग होने वाला है वो आपके थ्रेड बेस होने वाला है। ओके, देन आपके यहाँ पे हमने क्या पास की है, बफर की साइज के, आपके बफर की साइज कितनी है, फॉर एग्जांपल आप कितना रिसोर्सेस वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, तो बेसिकली ये बफर साइज यहाँ पे डिफाइन हुआ है। देन सेम इनिट फुल का यहाँ पे क्या किया गया है, अभी सभी के सभी स्लॉट जो है फुल हो गए, करेक्ट है, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने फुल डिक्लेयर किया है। देन थ्रेड की वजह से मैंने यहाँ पे जीरो, और साइज क्या दिया है मैंने अभी इसको जीरो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देन pthread mutex init क्या कर रहा है, इट इनिशियलाइजेस योर mutex with a default attribute, okay, which is you are passing over here none. I hope you understand this. अब तक हमने क्या देखा है, हमने क्या किया है, थ्रेड वेरिएबल क्रिएट किए फॉर अ प्रोड्यूसर एंड अ कंज्यूमर। देन उसके बाद में हमने क्या किया, हमारा सेमाफोर और म्यूटेक्स दोनों चीजें हमें चाहिए थी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो भी हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। अब आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा फॉर व्हाट, फॉर इम्प्लीमेंटिंग। ओके, तो उसके पहले हमें क्या करना है, हमें थ्रेड्स क्रिएट करने होंगे, किसके लिए, एक प्रोसीजर सॉरी एक प्रोड्यूसर थ्रेड और सेकंड वन इज अ कंज्यूमर थ्रेड। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, इस पीस ऑफ कोड में हम क्रिएट कर रहे हैं हमारा प्रोड्यूसर थ्रेड और कंज्यूमर थ्रेड। जैसे ही ये कॉल होगा, यहाँ पे क्या पास हो रहा है, आपका प्रोड्यूसर थ्रेड का जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो एक नल वैल्यू, प्रोड्यूसर देन अगेन नल वैल्यू। ओके, इट स्टार्ट्स ईच थ्रेड आर्ग्यूमेंट, थ्रेड आईडी पॉइंटर आप यहाँ पे पास कर रहे हो। देन आपका सेकेंड एट्रीब्यूट जा रहा है नल, विच इज अ डिफॉल्ट एट्रीब्यूट। देन आप क्या कर रहे हो, फंक्शन टू रन दे रहे हो, जो भी फंक्शन आपको यहाँ पे कॉल करना है वो यहाँ पे हमने फंक्शन दिया है, विच इज़ अ प्रोड्यूसर और अ कंज्यूमर। ये फंक्शन हमने कहाँ पे लिखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मेरा प्रोड्यूसर का फंक्शन लिखा है, देन यहाँ पे मैंने मेरा कंज्यूमर का फंक्शन लिखा है। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है प्रोड्यूसर और यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है आपका कंज्यूमर। देन उसके बाद में हमने क्या पास किया है, आर्ग्यूमेंट पास किए हैं टू द फंक्शन विच इज नल। ओके, सो दिस इज अ सिंटैक्स ऑफ अ प्रोड्यूसर थ्रेड और कंज्यूमर थ्रेड को कॉल करने के लिए। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस दिस पीस ऑफ कोड। अब pthread ज्वाइन कहाँ पे आपको हेल्प करता है, तो ये क्या करेगा, वेट करेगा आपके थ्रेड का टर्मिनेशन के लिए। अब यहाँ पे आपका प्रोड्यूसर थ्रेड हमने पास किया है और हमने यहाँ पे कंज्यूमर थ्रेड पास किया है। जब तक प्रोड्यूस होता जाएगा इसका मतलब है यहाँ पे कंज्यूम होता जाएगा, तो ये क्या करेगा, आपका मेन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूसली अलाइव रखेगा। ओके, तो कंटिन्यूसली आपका एग्जीक्यूशन शुरू रहेगा फॉर प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग योर रिसोर्सेज बाय योर थ्रेड। ओके, सो लेट्स डिस्कस प्रोड्यूसर फंक्शन एंड कंज्यूमर फंक्शन। तो यहाँ पे क्या रहा है, ये जो है void स्टार प्रोड्यूसर, ये क्या यूज हो रहा है फॉर रनिंग योर फंक्शन। ओके, जैसे हमने फंक्शन कॉल किया है फ्रॉम मेन, ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने इनिशिएट क्या किया है, इंटीजर एटम, तो जैसे ही कुछ प्रोड्यूस होगी रिसोर्सेस, ओके, या फिर प्रोड्यूसर कुछ डेटा प्रोड्यूस करेगा, ओके, तो वो स्टोर होने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए था, तो इसलिए हमने यहाँ पे आइटम डिक्लेयर किया। मैंने यहाँ पे कंडीशन की है व्हाइल वन पास। ओके, वन इज नथिंग बट अ ट्रू, ये कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता जाएगा जब तक आप
मैन्युअली टर्मिनेट नहीं कर देते हो। लेकिन अगर स्पेसिफिक टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आपको चाहिए तो आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो बेसिकली ये 10 टाइम ही आपको प्रोड्यूस करेगा और 10 टाइम्स से आपको ये कंज्यूम करके देगा। ओके ना, यहाँ पे मैंने आइटम में क्या स्टोर किया है, देन रैंडमली कोई आइटम जनरेट होगा यहाँ पे फ्रॉम 0 to 99। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे वेट अंटिल एटलीस्ट वन स्लॉट इज एम्प्टी। ओके, क्यों, हमें प्रोड्यूसर का जो फंक्शन है वो कॉल करना है। इसका मतलब जो भी प्रोड्यूस होगा उसके लिए हमें वेट करना है। अब अगर ये एम्प्टी है, हमारे पास कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, इट मीन्स वी हैव टू वेट अंटिल योर स्लॉट बिकम टू 1। ओके, एटलीस्ट 1 अवेलेबिलिटी हमें चाहिए है। ओके, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस फंक्शन ओवर हियर। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर अवेलेबल हो गया है, ओके, फ्री हो गया है, अवेलेबल है, यहाँ पे मोर देन 1 है या फिर एटलीस्ट 1 है स्लॉट, तो इसका मतलब है हमारे पास में रिसोर्स है टू क्रिएट एंड यूटिलाइज। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम pthread म्यूटेक्स के लिए कॉल कर रहे हैं फॉर अ लॉकिंग। ओके, जैसे ही मैंने म्यूटेक्स पास किया, इसने क्या किया, इसने इस बफर को जो है वो लॉक कर दिया फॉर अनदर थ्रेड्स। ओके, जैसे ही हमारे पास आइटम आ गया, हमने क्या किया, उसे इंसर्ट कर दिया हमारे बफर में। हमने क्या देखा था, प्रोड्यूस के वक्त हम क्या यूज करेंगे, कौन सा वेरिएबल, इन वेरिएबल। क्यों, क्योंकि हमें जितने भी आइटम्स प्रोड्यूस है या फिर जितने भी रिसोर्सेज प्रोड्यूस हुए उन्हें कहाँ पे डालना है, हमारे बफर के अंदर प्लेस करना है। करेक्ट है, ताकि आउट के थ्रू या फिर कंज्यूमर के थ्रू वो यूटिलाइज हो सके। तो इसी के लिए मैंने क्या किया है, मैंने इन में क्या किया है, जितने भी इन के लिए वेरिएबल थे, जितने भी बफर में आइटम्स थे, उसके साथ में +1 करके उसे बफर साइज बना दिया है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑलरेडी 1 था, 1 ही वैल्यू थी। ओके, उसके बाद में आपकी जो क्रिएट हुई है वो 2 क्रिएट हुआ है। तो मैंने क्या किया, जस्ट इनको मिला के हमारी बफर की साइज जो है वो इंक्रीमेंट कर दी है। ओके, और उसे हमने क्या स्टोर कर दिया हमारे इन में। अब हमारे पास एक वैल्यू है कि हमारे पास 1 + 2 3 रिसोर्सेस अवेलेबल है। ओके, देन जैसे ही हमारा काम हो गया, हमने क्या किया है, अनलॉक कर दिया है हमारा म्यूटेक्स। अब हमारा बफर फ्री है फॉर एक्सेस फॉर अनदर थ्रेड। ओके, देन उसके बाद हमने क्या किया है, हमने हमारा जो काउंट था, ओके, फुल स्लॉट का, उसे इंक्रीमेंट कर दिया है बाय योर काउंट। ओके, में जो प्रोड्यूसर का काम हो गया है, उसके बाद में हमारे पास की रिसोर्स जो है वो इंक्रीमेंट हो चुके हैं। इसीलिए मैंने क्या किया है, मेरा फुल स्लॉट का जो काउंट है वो यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया है। ना, हियर आई एम एडिंग स्लीप टाइम 1। क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्शन डिले है वो हमें वहाँ पे सिमुलेट करने के लिए ऐड करना है। ओके, सो दिस इज हाउ योर प्रोड्यूसर वर्क। नाउ डिस्कस अ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर फंक्शन क्या करेगा या फिर कंज्यूमर थ्रेड क्या करेगा। ओके, सो सबसे पहले मैंने सिमिलरली आइटम्स यहाँ पे इनिशिएट किया है, और उसके बाद में इन्फिनिटी एग्जीक्यूशन के लिए मैंने व्हाइल की ही कंडीशन यूज की है। देन नेक्स्ट विथ अनदर पार्ट, सो सेम वे टिल व्हाट फुल, जब तक के आपके पास एक स्लॉट नहीं है, क्यों, तब तक आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो। अगर आपको कंज्यूम करना है, इसका मतलब है आपके पास में एटलीस्ट 1 ऑफ स्लॉट तो भी चाहिए या फिर एटलीस्ट 1 ऑफ द रिसोर्स तो भी चाहिए है। एटलीस्ट एक स्लॉट भी अगर अवेलेबल है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब है हमारे पास में एक स्लॉट अवेलेबल है। ओके, तो मैंने क्या किया, हमारा जो म्यूटेक्स था उसे मैंने लॉक कर दिया बाय हेल्प ऑफ योर फंक्शन pthread mutex लॉक। ओके, जैसे ही मेरा लॉक हो गया, इसका मतलब है मेरे बफर को अब दूसरा थ्रेड एक्सेस नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब थ्रेड कंज्यूमर के लिए हमें जो भी रिसोर्सेज चाहिए ये फ्रॉम अ बफर, मैं क्या करूँगी, वो यहाँ से रिमूव करूँगी। ओके, देन जो भी रिसोर्सेज मेरे पास लगेंगे वो मैंने रिमूव कर लिए, फॉर एग्जाम्पल विच इज प्रिंटर या फिर स्कैनर, जो भी है वो। ओके, देन हमें क्या किया, हमने कंज्यूम कर लिए हैं, कितने आइटम्स हमने कंज्यूम किए, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ नंबर ऑफ आइटम्स, तो हम वो प्रिंट करेंगे कि मैंने इतने आइटम जनरेट हुए थे प्रोड्यूसर में, अब मैं इतने आइटम जो है मैं कंज्यूम कर रही हूँ। ओके, देन उसके बाद में क्या किया है, मैंने आउट की जो वैल्यू है उसे इंक्रीमेंट कर दी। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक मेरा एरे था जिसमें हमारे वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो रिसोर्सेस ऐड हो रहे थे यहाँ पे हो रहे थे, जैसे ही प्रोड्यूसर कॉल हुआ, एक इंक्रीमेंट हुआ है फॉर एग्जाम्पल आपके पास में, तो यहाँ पे वो 7 ऐड करेगा। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कंज्यूम कर रही हूँ, तो मेरा आउट यहाँ से होगा। ओके,
तो ये रिसोर्स जैसे ही मेरा आउट हुआ, इसका मतलब क्या है, मेरा सेकेंड रिसोर्स मेरे पास कौन सा है, 2। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, आउट जो अभी था 1 ऐड 1, नेक्स्ट पोजीशन पे जो है वो मुझे अभी रिसोर्सेस नेक्स्ट यूटिलाइज कर सकता हूँ, करेक्ट है। तो इसके लिए ये वैल्यू हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। देन उसके बाद जैसे ही मेरा सर्कुलर इंक्रीमेंट का काम हो गया है, तो मैं क्या करूँगी, इस थ्रेड के जो म्यूटेक्स है उसे कॉल करूँगी फॉर अ अनलॉक। ओके, सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने वेट किया अगर कोई स्लॉट अवेलेबल है क्या, तो मैं उसे कंज्यूम कर सकता हूँ। ओके, जैसे ही मुझे स्लॉट अवेलेबल मिल गया, मैं कंज्यूम कर सकता हूँ। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने थ्रेड का जो है म्यूटेक्स लॉक सेट कर दिया। ओके, अब मेरा बफर लॉक हो गया है फॉर अ सिंगल थ्रेड। देन जो भी आइटम जनरेट हुए थे उसको मैंने बफर के रिलेटेड जो भी वर्क मुझे करना था वो मैंने यहाँ पे कर लिया। फॉर एग्जांपल आइटम जो भी है बफर आउट में, वो आइटम में सेट कर दिए। अब जो कंज्यूम आइटम्स है उसे मैंने प्रिंट कर दिया। उसके बाद में मैंने आउट की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट कर दी। क्यों? क्योंकि मुझे नेक्स्ट रिसोर्स भी यूटिलाइज करने हैं उसके लिए। देन मेरा काम हो गया है, तो मैंने क्या किया है, म्यूटेक्स जो है वो अनलॉक कर दिया। अब मेरा बफर फ्री है टू यूटिलाइज बाय अनदर प्रोसेस या फिर टू यूटिलाइज बाय अनदर थ्रेड, क्योंकि आपका इम्प्लीमेंटेशन किसके रिलेटेड है, आपके थ्रेड के रिलेटेड है, करेक्ट है। देन अब मैंने क्या किया है, मैंने सेट किया है सेम पोस्ट विथ अ एम्प्टी। ओके, तो ये क्या करेगा, आपका जो एम्प्टी स्लॉट्स का काउंट है उसे इंक्रीमेंट करेगा। ओके, फॉर अ सिमुलेशन कंजम्पशन मैंने यहाँ पे 1 सेकेंड का डिले दिया है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट योर कोड फॉर अ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. I hope you understand the implementation of code. Now let's execute this code in a terminal. Okay, now अब प्रैक्टिकल 4 का एग्जीक्यूशन जो है वो थ्रेड बेस्ड है, करेक्ट है, और प्रीवियस के जो एग्जीक्यूशन थे वो प्रोसेस बेस्ड थे। नाउ एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन थ्रेड प्रैक्टिकल, आपका जो कंपाइलेशन का सिंटैक्स है वो थोड़ा अलग है। कंपाइलर सेम यूज होगा, जीसीसी अगर आपकी सी फाइल है तो। आफ्टर अ कंपाइलर हमें क्या चाहिए होता है, हमारी कोड फाइल विच इज अ प्रैक्टिकल 4a ओके डॉट सी विथ अ एक्सटेंशन, करेक्ट है, आपको एक्सटेंशन देना नहीं भूलना है। देन उसके बाद में -o। अब कंपाइल फाइल का नाम, जो भी कंपाइल फाइल आपको क्रिएट करनी है वो मेरे, तो ये मेरी कंपाइल फाइल का नाम है। जो भी कोड कंपाइल होगा वो स्टोर होगा आपके PRA4 में। अब इसके साथ में मुझे पास करना है -lp thread. At the time of execution of your thread practical, you have to pass this thread to the your compiler. ना जैसे ही मैंने एंटर किया, आपका कोड कंपाइल हो गया है और कंपाइल कोड जो है वो आपके PRA4 में स्टोर हो गया। ओके, तो वी हैव टू एग्जीक्यूट अ compiled code file. So let's see how your practical execute. Now it is continuously producing and consuming a item. Okay, so here you can see it is continuously producing. अब हमने यहाँ पे कोई टर्मिनेशन की कंडीशन नहीं दी थी, मैंने व्हाइल में कंडीशन जो है ट्रू दिया हुआ है, तो ये कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता जाएगा जब तक मैं इसे टर्मिनेट नहीं करूँगी। आई एम यूजिंग Ctrl+C टू टर्मिनेट माई एग्जीक्यूशन। ओके, so this is how your practical 4a, which is nothing but your producer and consumer problem using semaphore and mutex implemented. Okay, I hope you understand all basic concept regarding practical number 4a, which is based on thread. Now in next video we will implement and execute practical number 4b, which is based on thread synchronization using reader and writer problem with reader priority. Okay, that's it for today's video. I hope you found this video helpful. Don't forget to like this video, share with your friends and subscribe my channel. Thank you.